Hello and Tassidele friends, my name is Jugantar and I am from Yangsen IS. Welcome to another episode of our online class that is on percentage. तो आज के क्लास में हम परसेंटेज के बारे में सीखेंगे. So first of all, what is percentage? Per means 100. Per means divide. Centage means 100. तो परसेंटेज फ्रेंड्स डिवाइड बाय 100 को ही परसेंटेज बोलते हैं. So par, here the par means divide and sentence means 100. Okay, so this is the thing. Say someone tells you 94%, that means 94 by 100. Okay friends, someone tells you 25%, 25 by 100. Okay, so percentage is a fraction where denominator is always 100. So you can see friends, this is numerator and this is denominator. In percentage, the denominator is always 100 if you convert that percentage into fractions. So friends, let's change some percentage to fraction. So this thing, what is the 50% means? If you change this thing into fraction, what will be the fraction? So 50% is equal to 50 by 100. You can cancel the zeros. 5 ones are 5, 5 twos are 10. So 50% is equivalent to 1 by 2. If you change the percentage into fraction, it is 50% is equal to 1 by 2. If you change this 25% to fraction, तो 25 by 100, क्योंकि percentage is a fraction whose denominator is always 100. ऐसे लिख सकते हैं हम. तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1 by 4. So आप 25% बोल लो या फिर फ्रैक्शन में उसको 1 by 4 बोल लो, that is equivalent. 30% 30 by 100. ठीक है, तो it is 3 by 10. We can't cancel this thing, है ना, कैंसिल नहीं जाएगा, इसलिए ये 3 by 10 ही होगा. Okay friends, so next is 10%. What is 10%? So friends, 10% means 10% divide 10% is equal to 10 by 100. So we can cancel this thing, 1 by 10. What is 1%? 1% is 1 by क्या होगा, 100 होगा. अब if you can sense these fractions, so this is okay, but what is the vice versa? That means if you have the fraction, how can you convert into percentage? So for this thing, say you have a fraction, isn't it? So 1 by 2, what is the percentage? So you have to multiply with what? 100, isn't it? So we can cancel this thing. तो 250, तो फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, फिर से हमारे पास आ जाएगा 50%. For here also you can multiply with 100. तो फ्रैक्शन से परसेंटेज लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से. तो इट विल बिकम 25% अगेन. ठीक है, तो इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30%. तो परसेंट से फ्रैक्शन बनाने के लिए इट इज जस्ट न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100, देन यू कैन कैंसिल, देन यू विल गेट द फ्रैक्शन, बट फ्रैक्शन से फिर से परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100. I hope it is clear. For this thing, it's like 10%, we get 1 by 10. If we multiply 100 here, we will again get 10%. If we multiply 100, we will again get 1%, isn't it? So here I would like to give you some concepts of percentage. The percentage chapter is very important for all your upcoming exams. It is also important for all other parts, other topics of mathematics, just like profit and loss, time and work, and many more. So it is very important. So please concentrate on these concepts.
And look at this, the x% of y, x% of y. How can you write that? X% means what? I have already told you, x% means x by 100. Percent is nothing but a denominator is 100. Okay, and of means here into, you all know y, so it is xy by 100, isn't it? So यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आए जैसे 60% of what is 360, so how can you do these questions? So इस what के जगह आप x ले सकते हो, तो 60 by 100 into 60 by 100 into क्या होगा x, क्योंकि हमारे पास ये नहीं पता हम लोग को, so then it is 360. Just cancel this out. So this is the thing, and what will be the x? We can't cancel, friends, we can't cancel this way because it is equal to का उस पार है. So we can sense that 6 by 10, then 10 will multiply with this one because it is divide, it is in divide, so you can say 6x by 10 is equal to 360. So x is equal to what? X is equal to 360 into 360 into 10, x is equal to क्या होगा 360, ये तो डिवाइड है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, एंड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, इट इज एक्चुअली 6x. ओके, I will simplify it. I will do one more steps for your better clarification. So यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे नीचे जाएगा तो क्या होगा x is equal to क्या होगा 360 into 100, sorry 10, it is 10 by 6, 6 are 36, तो 60 into 100 that is 600. तो हमारा ये 60% of this one is 360, तो it is x is equal to 600. we'll get it from here. कैसे निकाला फिर से एक बार बताता हूँ. 60% इसको x ले लिया, तो यहाँ पे हमने 0 को कैंसिल किया, 6x by 10 हो गया, इस तरफ 360 है. ओके, ये 10 यहाँ पे डिवाइड था, इस तरफ गया मल्टीप्लाई हो गया, तो 360 इंटू 10, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई था, तो ये जाके उस पास जाने से क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, वही डिवाइड में आ गया और आप कैंसिल कर दिया उसको, और यू विल गेट व्हाट 600. सो ये क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो, इसके जगह आप x लगा दो और फिर x by 100 करेक्ट करके इसको सॉल्व करो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट x. तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कर सकते हो, है ना, बस x ले लेना है, तो यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम, है ना, एंड इफ यू राइट द आंसर इन द कमेंट. So next concept is, friends, we have to try some more questions. Okay, you can try these questions also. 40% of 600, you know, 40% of 600 will become like 40 by 100, है ना, into 600. 40 by 100 into 600. Do this question also. Find the answer. What will be the answer? 60% of what? So this is again x. So we will take it as x. So we have already done this question here. Okay, anyway, so go to the concept number 2. x% of y is equal to y% of x. ऐसा क्यों हुआ friends? Let's check this thing. क्यों ऐसे लिख सकते हैं x% of y को, क्यों y% of x हम लिख सकते हैं? Why we can write this x% of y as y% of x? Look at this, x by 100. Okay, x% मतलब क्या है? x% means x by 100. Percent is nothing but a denominator is 100. Percentage is a fraction where denominator is 100 into y. So it become xy by 100, isn't it? So we can also write like y by 100 into x. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि it is already in numerator, so it is multiply. So हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं y by 100 मतलब क्या है, फ्रैक्शन इज नथिंग बट ए परसेंटेज, है ना, where denominator is 100. so आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y%, और इस इंटू की जगह हम क्या लिख सकते हैं ऑफ x, y% of x. तो यही इसी तरीके से यहाँ पे आया है.
ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ काम आएगा? हाँ, ये आपको बहुत सारे जगह यू कैन यूज दिस थिंग, दिस कॉन्सेप्ट, ओके। x परसेंटेज ऑफ y एंड y परसेंटेज ऑफ x, जैसे एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 36% ऑफ 50, okay, 36% of 50, you can also write it as 50% of 36. What is 50%? 50%, 50 by 100, actually friends 50% मतलब इसका हाफ, इसका हाफ। आप ऐसे भी लिख सकते हो 50 by 100, इसको कैंसिल करके आप ऐसे करो तो 5 1 जा 5 5 2 जा, तो ये क्या आ गया? हाफ। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग 50% मतलब 36 का हाफ, दैट इज आंसर इज 18। डायरेक्टली यू कैन राइट दिस थिंग, ओके। आप जितनों को यहाँ पे समझ नहीं आया एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ कैन वी राइट दिस थिंग ना। तो इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, हम नॉर्मली भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वी generally in our day to day life we use this concept. It is very, it is not a new to you, new for you, it is just an old concept. Say I have a value called 50, है ना, इसका 50% कितना होगा? what will be the 50% of this 50? 50% means इसका half, because it is 100%, तो इसका हाफ कितना होगा? 25 डायरेक्ट, ठीक है। से आई हैव a value called 1200, what is the 50% of 1200? it is nothing but 600, okay। if somebody asks you what is the 10% of this one, what is the 10% of this one, you just have to deduct a zero and you can tell the answer, it is 120. So friends, we get the 50% is 600 and 10% is our 120. How can we find this 10%? Just deduct a zero. Say, what is the 10% of 50? Just deduct a zero. That is 5. 5 is the answer. So somebody asked you, what is the 60%? What is the 60% of 1200? So we get the 50% is what? 600, isn't it? Plus 10% is 120. You can directly multiply. The answer is 720. So this is the concept we generally use in our day-to-day life. Say I have a value called 1260. What is the 50% of this one? 630. Obviously इसका half. 50% क्या होगा? इसका half होगा. This is the 50%. What is the 10%? It is 126. इसको डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। इट इज वेरी इजी, है ना फ्रेंड्स। तो आई जस्ट I hope that you are understanding these concepts. Say 1280. Can you tell me what is the 50% of this one? 640, isn't it? 640 is half. If somebody tells you say the figure is 5600, what is the 50% of this one? 5000 का 50% कितना होगा? 2500 friends, 2500, 2500 and 600 का 50% कितना होगा? 300। तो यहाँ पे देखिए आप 5600 है ना, ठीक है। 5600, इज इट ओके फ्रेंड्स? 5600, इसका 50% कितना होगा? इफ समबडी आस्क्स यू 5000 का 50% कितना होता है, पहले तो ये बताइए मुझे। हाफ, 5000 का हाफ ले लेता है, डेट इज 2500। व्हाट इज द 600 का हाफ? 600 का हाफ इज 300, तो योर आंसर इज 2800। तो यू कैन डायरेक्टली से द 50% और द 10%। 10% तो आपको बताइए, एक जीरो डिडक्ट कर लेना है। अगर आपको तो ये 10% हो जाएगा। 10% इज व्हाट? 10% इज व्हाट? 560। somebody asks you 1%, then deduct 2 zeros, है ना। 2 zeros मतलब divided by 100, है ना। 1 zeros deduct मतलब divided by 10, okay। तो what is the 1% of 5600? That is 56। 1% मतलब कितना हो जाएगा? 56। somebody, you can also confuse about this, like say figure is 1248, what is the 1%? obviously friends, divide by 100, तो यहाँ पर point आएगा, तो 12.48 is the 1% of this one, okay। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। So friends, here our next concept is increase and decrease value by percentage, okay।
Say original value is x, it is increased by p% or decreased by p%, then the new value will be x plus minus, यहाँ पे ये प्लस माइनस है, this one. अगर new value is original value is x and it is increased by p%, कितना परसेंट, p% है ना, तो इस अगर इंक्रीज होता है देन इट इज x प्लस p%, अगर डिक्रीज होता है देन इट इज x माइनस p%. ओके, इंक्रीज होता है तो x प्लस p%, इन डिक्रीज होता है तो x माइनस p%. जैसे एज फॉर एग्जांपल से एक वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 1360, इट इज इंक्रीज बाय 30% बोलते हैं आपको, तो देन you have to write it as 136 plus 30% of this one, 30% of 1360. हाँ, ये परसेंट हमेशा ऑफ के साथ ही होता है, तो किसका परसेंट निकालोगे आप, नहीं तो, है ना, तो ये हमेशा 30%. अगर आपको बोलते कि ये तो इंक्रीज था, अगर आपको बोलते कि डिक्रीज हो गया तो यू हैव टू जस्ट पुट माइनस एंड यू हैव टू कैलकुलेट. आई होप यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग, इजंट इट. तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक वैल्यू दिया है वो इंक्रीज बाय डेट परसेंट, देन यू हैव टू राइट इट प्लस 30% ऑफ दैट और माइनस दिस वन बाय दैट, है ना, x माइनस p%. ठीक है, समझ में आया होगा आपको. दिस इज द कॉन्सेप्ट. ओके, say I give you an example here. I would like to give you an example, the real example. जिस टाइप का क्वेश्चंस आता है एग्जाम में. सो से सैलरी, एस सैलरी, एक क्वेश्चन है जैसे एस सैलरी इज 40,000. ओके, and it is increased by 25%. how much it is increased by, how much, 25%. and new salary कितना होगा, न्यू सैलरी कितना होगा उसका, तो 40,000 तो आपको ऐड करना ही है. हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर और सैलरी x होता तो ये अगर p% था तो हम लोग कैसे लिखते थे, x प्लस p%. वही x मतलब हमारा 40,000, तो 40,000 है ना, प्लस व्हाट, p%, दैट इज 25%. 25% ऑफ 40,000. अभी आप मुझे बोलिए 40,000 तो ओके है, आप लिख देंगे इसको. व्हाट इज 25% ऑफ 40,000? यू कैन राइट इट एज 25/100 इनटू दैट थिंग आप कर सकते हो. लेकिन आप और एक तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि व्हाट इज द 50% ऑफ 40,000. 40k का 40,000 मतलब k मैंने लिख दिया यहाँ पे, k मतलब 1000 ही है, तो 40,000 का हाफ अगर लेंगे 50% लेंगे तो डेट इज 20k. इज इट क्लियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? 40,000 का हाफ है 20,000. इज इट ओके, इज इट ओके? इट इज 50%, इज इट? हाफ मतलब 50%. अब इसका भी हाफ ले लेंगे तो डेट इज 10k, डेट इज 10k. ये कितना होगा, 50 का हाफ कितना होता है, 25%. 25% इज 10k. आपको समझ आया? अगर आप ऐसे भी करते कि 25/100, जैसे आप देखो, आप अगर ऐसे भी करते 25/100 इंटू 40,000, आपको अगर ये ठीक लगता है तो ये कीजिए, मैं कोई उसमें आपका कंफर्ट जोन में कीजिए, आप जो भी अच्छा लगे आपको, है ना, तो आप उसको कर सकते हो, है ना. तो 25 इंटू 4 इज 100 और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, है ना, तो डेट इज योर 10,000. इजंट इट? यहाँ पर भी आंसर कितना आया है, 10,000. 10,000 मतलब 10k. मैंने इसलिए बोला ताकि आपको थोड़ा इजी हो. 40,000 का 50% 20,000, 20,000 का 50% 10,000, तो 20,000 का 50% मतलब 50, इसका कितना हो गया, तो फिर 25% हो गया, है कि नहीं? अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ये आप कर लो, ठीक है. डेट इज 10,000. तो 40,000 और 25% बढ़ गया, 40,000 प्लस 10,000 इज 50,000. इसका सैलरी कितना हो गया, 50,000. ऐसे डिक्रीज होने से क्या करते हैं आप, डिक्रीज होने से माइनस लगा देते हैं, ठीक है. दिस इजी है ना फ्रेंड्स. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम. Then you can write, you can do these questions by using this formula, x plus p
परसेंट और -p%, डिक्रीज होने से माइनस लगा दीजिए। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस मोर टू गेट a better grip of these questions. The next trick is x is what percent of y. So this is the very easy, friends. This is x is what percent of y. X is what percent of y. You just have to remember where is the off located. You just have to find where is the off located. और off के बाद क्या है, that you have to find. देखिए off के बाद क्या है, off के बाद y है, off के बाद y है ना, जो ऑफ के बाद होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, इतना याद रखिए। और ऊपर क्या आ जाएगा, जो आगे है x into 100. x is what percent of y. So this is very easy, friends. I can give you an example for this also. Say 10 is what percent of, मैं easy सा example ले रहा हूँ, 10 is what percent of 100. Okay, ऑफ के बाद क्या है 100, तो we write 100 in the denominator, not in the numerator but in the denominator, and then we have to write 10 and then into 100. तो 100 हो गया, तो 10%. 10 is what percent of 100? 10 is 10%, 10% of 100, है ना। सबको पता है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यू कैन चेक दिस आउट। आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। आप हमेशा लोकेट करिए, ऑफ के बाद जो है उसको डिनोमिनेटर में लिखिए, बस आप उसके इनटू 100 कर दीजिए, ऊपर जो भी आगे है उसको पुट कर दीजिए। इज इट ओके फ्रेंड्स? इज इट? मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है ना। तो जैसे क्वेश्चंस है इसमें भी, जैसे आपको मैं दिखाऊं तो पहले ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम उसको कर लेते हैं। x is what percent more or less than y. x is what percent more or less than y. इसके लिए आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा फिर से, है ना। तो ये एक अलग फॉर्मूला हो गया, x is what percent more than y. वेरी इजी फ्रेंड्स। देखिए x is what percent more, x बड़ा है ना y से, तो x क्या करेंगे आप, x माइनस y करेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, लेस देन। देखिए यहाँ पे देन के बाद क्या है, देन के बाद क्या है, देन के बाद y है, तो y को नीचे डाल दीजिए, बस मोर और लेस देन y एंड देन इनटू 100, ये तो आएगा ही। और अगर मोर होता है तो प्लस आएगा, अगर लेस होता है तो माइनस आएगा, बस इतना ध्यान रखिए आप, ठीक है। ओके, x ये आपका फॉर्मूला है, यू कैन राइट this formula. X is what percent of more or what percent of less than y. Say as for example, say say 200 is what percent of what percent more than 10, more than 10 डाला है, तो कैसे लिखेंगे, तो देन के बाद क्या है 10 है, तो 10 को आप कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, है ना। 10 को आप कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। एंड 200 x माइनस वाई इज x, यहाँ पे क्या आएगा आपका x माइनस वाई, तो x आपका क्या है 200 है, 200 माइनस 10, आप देखिए यहाँ पे, तो हमारा आ गया 190 बाई 10 इंटू 100 फ्रेंड्स, इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, इट इज 1900 मोर, है ना। सो 210 से कितना परसेंट, 1900%, या परसेंट भी है ये, इज इट ओके, व्हाट परसेंट मोर, ये ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना परसेंट मोर आ गया आपका, ठीक है, रिजल्ट ये है। तो ये आप आंसर कर सकते हो ऐसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, x इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर और लेस। से 200 से y 200 इज 1000 से कितना परसेंट लेस है, तो इसमें आपको माइनस देना पड़ेगा, तो 200 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 200 माइनस 1000, ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस आएगा, यू डोंट हैव टू पुट इट ऑल्सो, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस नहीं है बट माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस 800, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे, इसमें आ जाएगा आपका, इसको करेंगे तो माइनस 800 करेंगे, तो डेट इज 80%, 80% लेस हो गया, 200 1000 से कितना परसेंट लेस है, 80% लेस है। ये आप
देख सकते हो, कर सकते हो इस क्वेश्चन से। तो ये प्लस माइनस आप देखिए, आप इसको भूल भी जाइए तो कोई बात नहीं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में ही ये प्लस माइनस आ ही जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर और व्हाट परसेंट ऑफ लेस देन वाई। बस आपको याद रखना है देन की बात क्या है, वाई है, तो वाई आपका नीचे आएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स, इज इट ओके? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज चेंज। इस फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। ये फॉर्मूला बहुत बार आता है कि एक वैल्यू दिया हुआ है, वो इतना परसेंट से चेंज हुआ तो व्हाट विल बी द वैल्यू, है ना। तो कितना परसेंट चेंज हुआ, है ना। एक से एक, अब किस तरह का क्वेश्चन आता है मैं बताता हूँ। जैसे एक वैल्यू है 100, एक वैल्यू है 100 से एक एक आप कपड़ा खरीदते हो, तो मान लीजिए देयर इज अ क्लोथ, यू आर बाइंग ए गारमेंट, एंड दैट गारमेंट इज right now say it is 2000, say it is 2000, and it is increase the buyer, the seller increase the price to 4000। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, है ना, परसेंटेज इंक्रीज। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इस टाइप का क्वेश्चंस को करने के लिए इज योर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू जो 2000 से 4000 हो गया, माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब पहले कितना था 2000, बाई इनिशियल वैल्यू। याद रखना, यहाँ पे ध्यान रखने का काम ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, इनिशियल वैल्यू है फ्रेंड्स, इनटू 100। ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम निकाले तो क्या होगा, 4000 माइनस 2000 है कि नहीं, 4000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 2000 into 100। तो 4000 minus 2000 is 2000, so 2000 divided by 2000 कैंसिल हो गया और हमारा बच गया कितना, 100। तो 100% इंक्रीज हो गया ना, 2000 को 4000 कर रहे हैं तो 100% इंक्रीज हो गया, तो 100% इंक्रीज परसेंटेज चेंज। ओके, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स एक बार मैं समराइज कर देना चाहता हूँ कि क्या हमने किया, है ना। उसका एक प्रॉब्लम यहाँ पर और एक है, वो हम देख लेते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर मैं आपको समरी दे देता हूँ, है ना। तो द प्राइस ऑफ 1 किलो ऑफ राइस, 1 किलो राइस है ना, 1 kg राइस है, तो फ्रॉम 10 to 12 कितना हुआ, 10 to 12.5 हुआ। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, क्या था फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। So you can just write this formula here. In his final value is 12.5 minus initial value is 10 divided by initial value into 100। Okay, तो 12.5 से 10.5 किया तो 2.5 divided by 10 into 100, तो आपका कितना हो जाएगा 25%। ओके फ्रेंड्स, तो 25% इंक्रीज हो गया। कैसे निकाला मैंने, 12.5 माइनस 10 इज 2.5। अब 2.5 के साथ आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा ना, 0 0 कैंसिल हो गया इधर, तो 25% आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक, तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा दैट इज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी कॉन्सेप्ट, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि पहला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हमने, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो x बाय y इंटू क्या किया हमने 100, व्हाट परसेंट ऑफ y, तो ऑफ के बाद जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, तो उसमें हमने क्या किया, x माइनस y कर देते थे और डिवाइडेड बाय क्या कर देते थे, y आता है ना, इंटू 100। x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, ये वाला था, है ना, x इज व्हाट परसेंट। और थर्ड कॉन्सेप्ट हमने ये भी सीखा कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर दीजिए और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो आप यहां से भी याद रख सकते हो, जो यहां पर आता है वो यहां पर आता है, जो यहां पर आता है वो भी डिनोमिनेटर में आता है, इनटू 100। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। तो प्लीज ट्राई सम क्वेश्चंस, आप कहीं से भी क्वेश्चंस उठाएंगे तो परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज का सभी क्वेश्चंस आपको ये तीनों फॉर्मूला और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आगे उसकी थ्रू आपका हो जाएगा। जैसे मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको,
फ्रैक्शन कैसे करते हैं, परसेंटेज से, है ना, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। और फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज करना है तो आपको क्या करते हैं, आप इंटू 100 करते हैं। फिर हमने बताया आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिया ही है मैंने, है ना, एक्स परसेंट ऑफ वाई इजिकल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, आप ऐसे चेंज कर सकते हो अपना कन्वीनियंट के लिए। तो ये आप प्लीज एक बार रिवाइज कीजिए ये कॉन्सेप्ट्स, और आई होप इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।